वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग डी मोर थ्योरम्स। डी मोर थ्योरम्स का कैसे यूज कर सकते हैं हम अगर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को फाइंड करते हुए। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, solve the equation x raised to power 4, x raised to power 3, x raised to power 2, x plus 1 is equal to 0। इस इक्वेशन को हम डी मोर थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x minus 1, x minus 1, by x minus 1, then we get x raised to power 4, x raised to power 3, x raised to power 2, x plus 1 multiply with x minus 1, we get x raised to power 5 minus 1। इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? x raised to power 5 minus 1 is equal to 0। Now find the root corresponding to x raised to power 5 minus 1। इसके रूट्स फाइंड करो। So x raised to power 5 is equal to 1. 1 can be written as cos 0 plus iota sin 0, and this can be written as cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r। Then x is equal to cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r raised to power 1 by 5, and this will be equal to, by De Moivre theorem, cos 2 pi r by 5 plus iota sin 2 pi r, where r is equal to 0, 1, 2, 3 and 4. So 5 values of x raised to power 5 minus 1 are, put first r is equal to 0, then cos 0 plus iota sin 0 क्या बन जाएगा? 1। सेकेंड पुट r is equal to 1, r is equal to 1 पुट किया, cos 2 pi by 5 plus iota sin 2 pi by 5, and put r is equal to 2, we get cos 4 pi by 5 plus iota sin 4 pi by 5. Now put r is equal to 3, we get cos 6 pi by 5 plus iota sin 6 pi by 5। This can be written as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos pi plus 5 by 5। या फिर माइनस में ले लो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसको आप ऐसे लिखो दूसरे तरीके से, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा। आप इसको रखो cos 2 pi minus 4 pi by 5। अब 2 pi माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा, प्लस आइटा साइन
2 pi minus 4 pi by 5 is equal to cos 4 pi by 5 plus iota साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव 4 पाई बाय 5 एंड सिक्स्थ वैल्यू पुट r is equal to 4 then we get cos 8 pi by 5 plus iota sin 8 pi by 5। इसको आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। तो हमारे पास इसी तरह से वैल्यू आ जाएगी। बट 1 क्या है? x इज इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग दी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है ये। तो इसलिए इसके रिमेनिंग इसके तो फोर्थ रूट होंगे, इसको छोड़ दो। तो रिक्वायर्ड रूट ऑफ दी गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, ये रूट्स आ गए। तो ये क्या था? solve the equation by the De Moivre terms. Now next example. Solve the equation x raised to power 12 minus 1 is equal to 0 and find which of its root satisfy the equation. इसके जो रूट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो रूट्स भी फाइंड करने हैं। Now solution x raised to power 12 minus 1 is equal to 0. This implies x raised to power 6 minus 1 into x raised to power 6 plus 1 is equal to 0. So either x raised to power 6 minus 1 is equal to 0 or x raised to power 6 plus 1 is equal to 0. X raised to power 6 is equal to 1. This implies cos 0 plus iota sin this say 1 and this equation right 2. Cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r. Now x is equal to cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r raised to power 1 by 6, and by De Moivre terms this can be written as cos 2 pi r by 6 iota sin 2 pi r by 6, where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So first root of this equation, first root is equal to put r is equal to 0, r is equal to 0 पुट किया तो क्या बनेगा? r is equal to 0 पुट किया तो cos 0 plus iota sin 1 बन गया। इसको आप लिख सकते हो cos 0 plus iota sin 0 that is equal to 1. Second root put r is equal to 1, cos 2 pi by 6 iota sin 2 pi by 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 पे cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 3 1 बाय 2 प्लस आइटा रूट 3 बाय 2। सेकंड रूट ये हो जाएगा। थर्ड रूट put r is equal to 2 and cos 2 into 2 pi 4 pi
by 6 plus iota sin 4 pi by 6. टू से कैंसिल हो जाएगा ये, 2/3 2/3 एंड cos pi minus pi by 3 plus iota sin pi minus pi by 3. Pi cos pi minus pi by 3 minus cos pi by 3 plus iota sin pi by 3. cos माइनस पाई बाय 3 क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस √3/2 आएगा। इसी तरह फोर्थ रूट फाइंड कर सकते हो। Where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Now fourth root, put r is equal to 3, cos 6 pi by 6 plus iota sin 6 pi by 6, that is equal to cos pi plus iota sin pi means -1. तो फोर्थ रूट क्या आ जाएगा, -1. फिफ्थ रूट, पुट r is equal to 4. r is equal to 4 पुट करोगे तो क्या बनेगा, cos 8 pi by 6 iota sin 8 pi by 6 means cos 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3 cos 5 plus pi by 3 plus iota sin 5 plus pi by 3, that is equal to cos minus cos pi by 3 minus iota sin pi by 3, that is equal to -1/2 iota √3/2. ये क्या आ गया, फिफ्थ रूट। इसी तरह सिक्स्थ रूट आप फाइंड कर सकते हो, पुट r is equal to 5 and we get 6 रूट। इसी प्रकार इस इक्वेशंस के भी रूट्स फाइंड कर सकते हो आप। r raised to power 6 is x raised to power 6 is equal to -1. -1 can be written as cos pi plus iota sin pi.
then x raised to power 6 is equal to cos pi plus 2 pi r plus iota sin pi plus 2 pi r, and x is equal to cos pi plus 2 pi r divided by 6 plus iota sin pi plus 2 pi r divided by 6, where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ये वैल्यू आप पुट करते जाओ r की और आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आ जाएगी, यानी कि जो 6 रूट्स होंगे वो आपको आ जाएंगे। नाउ फाइंड विच ऑफ द रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये भी फाइंड करना है कि वो कौन से रूट होंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अभी हमने किया था x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट फाइंड किए थे। यदि हम इस इक्वेशंस को, वी हैव गिवन इक्वेशन x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे then we get x raised to power 6 minus 1 is equal to 0। मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसके रूट अभी हमने फाइंड किए थे, और उन रूट में 1 और माइनस 1 रूट भी थे, लेकिन 1 और माइनस 1 रूट्स प्लस माइनस 1 रूट्स करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट हैं वो। तो बाकी जो 4 रूट थे इनसे अलग, these are the root of the equation x raised to power 4 plus x square plus 1 is equal to 0। ये आप फाइंड कर सकते हो, और उसमें से प्लस माइनस को निकाल दो, बाकी जो रूट आएंगे इस इक्वेशन के जो रूट थे वो सभी रूट इस इक्वेशन के भी होंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, solve the x raised to power 7 is equal to 1, prove that sum of the nth power of the roots is 7 or 0, यानी कि जो nth power of the roots of these equations either equal to 7 or 0 according to n is a multiple of 7 or not a multiple of 7। तो given equations x raised to power 7 is equal to 1, this 1 is equal to cos 0 plus iota sin 0, and this can be written as cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r। Then x is equal to cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r by 7। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर put r where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रूट्स होंगे, ये इसकी वैल्यू होंगे r की, और वी गेट डिफरेंट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ r। when r is equal to 0 क्या आ जाएगा? 1। when r is equal to 1, cos 2 pi by 7 plus iota sin 2 pi by 7, r is equal to 2, cos 4 pi by 7 plus iota sin 4 pi by 7। Put r is equal to 3, cos
6 pi by 7 plus iota sine 6 pi by 7 r is equal to 4 cos 8 pi by 7 plus iota sine 8 pi by 7 r is equal to 5 cos 10 pi by 7 plus iota sine 10 pi by 7 when r is equal to 6 cos 12 pi by 7 plus iota sine 12 pi by 7 ये इसके 7 रूट्स हो जाएंगे। नाउ nth पावर ऑफ दिस रूट, इसकी nth पावर क्या होगी? यदि cos हमारे पास 2 pi r प्लस iota sine 2 pi by 7, इसका nth पावर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू cos बाय डी मोर थ्योरम्स 2n pi by 7 प्लस iota sine 2n pi by 7, ये आ जाएगा। n मल्टीपल हो जाएगा थीटा से डी मोर थ्योरम से। तो इन सभी का अगर हम nth पावर लेंगे तो क्या आएगा? nth पावर ऑफ द ऑल द रूट्स n आ जाएगा साथ में सभी के। ये nth पावर होगा। लेट दिस रूट आर 1 x x स्क्वायर, ये क्या है? ये x है, ये x स्क्वायर होगा। कैसे? यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ cos 4n pi by 7 प्लस iota sin 4n pi by 7, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 and स्क्वायर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि मैं इसको x मान लूँ तो ये क्या बन गया? x स्क्वायर। तो ये क्या 1, ये हमारे पास x, ये x स्क्वायर। सो रूट आर क्या बन गए? x 1 x x स्क्वायर x रेड टू पावर 3 x रेड टू पावर 4 x रेड टू पावर 5 एंड x रेड टू पावर 7। ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि जो सम करेंगे उसमें इजी रहेगा। ये दैट इज x इज इक्वल टू cos 2n pi by 7 प्लस iota 2n pi by 7, ये x है। अब सम ऑफ these रूट्स, पहला केस, if n is not a multiple of 7, if n is not a multiple of 7, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल द रूट इज इक्वल टू जीपी सीरीज है। फर्स्ट टर्म 1 x रेड टू पावर 7 r x क्या है इसमें? कॉमन रेशो, सभी का कॉमन रेशो भी तो x है, 1 माइनस x। अब इनकी वैल्यू पुट करो। 1 माइनस x क्या है? cos 2n pi by 7 plus iota sin 2n pi by 7 raised to power 7, 1 minus x। यदि मैं डी मोर थ्योरम से इसको मल्टीपल करता हूं तो क्या बनेगा? ये 7 इस 7 को कैंसिल कर देगा और cos 2n pi की वैल्यू क्या होगी? -1 और 1 2n, जैसे आपके पास क्या है 2, यहीं पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3, तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1 1 बाय x दैट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या आ गई? 0 के इक्वल हो जाएगा। कब? इफ x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। सेकंड केस, इफ x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, ये तो तब तो हमारा सम क्या हो गया? 0। सेकंड केस क्या रहेगा? इफ
n is multiple of 7, let n is a multiple of 7, then n is equal to 7m. So x is equal to cos 2 pi n by 7 plus iota sin 2n pi by 7, ये x होगा. Then cos 2 into 7m pi by 7 plus iota sin 2 7m pi by 7, ये वैल्यू हो जाएगी. और ये किसके इक्वल होगी? cos 2m pi प्लस आइटा sin 2m pi. 2m pi क्या वैल्यू रहेगी? 1. इसकी वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2m pi m को 1 2 3 कुछ भी करते चले जाओ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1. तो x हमारा कुछ भी हो, x की वैल्यू क्या रहेगी? 7. जब 1 जब n इज इक्वल टू 7m होगा, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 7 टाइम सेवन. तो when n is a multiple of 7, तो x sum of the roots will be equal to 7. ये हमारा क्वेश्चन था. थैंक यू.